Good morning, everyone. I hope you guys are doing well. Please confirm me if my voice is clear. Please confirm me if my voice is clear. All clear, not clear. Please make sure that your internet connection is also good one so that you can hear me well. Please confirm me if you can watch the screen. Please let me know if Yes, the screen is. Please do not turn your mic on, please. Kindly communicate with me via chat section, please. All right, so yesterday we did what are some good questions and what are some bad questions and what are some good ways of asking the question. How can you form very particular questions? And we also developed close-ended and open-ended questions, right? So today we will learn some types of questions because when you will be making your own questionnaire according to your study, you would need different types of questions. So here we are having different types of question. Number one is a specific information request. So sometimes you need not to be general or you don't need to give options. You need to be very much specific. For example, in which year did you start the degree course, right? You can't give the options and you need some specific information. So you are just giving exact statement in order to know exact answer. Then we have categories. This is have you ever been or are you a student representative टिक which अब इसमें क्या है हमने कैटेगरी दी है yes currently yes in the past never अब इसमें हम क्या करते हैं ऑप्शंस देते हैं yes की कैटेगरी भी दे रहे हैं हम करंट में yes की इन द पास्ट में भी दे रहे हैं एंड नेवर की भी दे रही अब हर किस्म की एक ही तरह की कैटेगरी में से ऑप्शन देंगे this is working somewhere or being represented somewhere and उसी के अंदर उसी कैटेगरी में जो है आप ऑप्शंस देंगे then we have multiple choice and you guys are well aware of the multiple choice because हम बचपन से ही इनको करते आ रहे हैं बचपन से ही सुनते आ रहे हैं this is there's example do you view the money you have spent on your higher education is any of the following if so take which a luxury an investment a necessity a gamble a burden a right none of these इसमें क्या है आपने ज्यादा ऑप्शन दिए हैं ये सारे एक ही कैटेगरी के ऑप्शन ही हैं यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरी एंड द मल्टीपल चॉइस इन मल्टीपल चॉइस सारे ऑप्शंस एक कैटेगरी के नहीं हैं मल्टीपल हैं डिफरेंट कैटेगरीज के हैं राइट एंड यू आर आस्किंग समवन अच्छा मल्टीपल चॉइस में यू कैन डू टू थिंग्स आप लोगों को ये कह सकते हैं कि प्लीज चूज वन और चूज एज मीनी एज एप्लीकेबल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ट्रूली क्या सिचुएशन है वाई पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन हायर एजुकेशन वो क्यों करते हैं तो या तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई किसी एक पे टिक लगाओ या आप कह सकते हैं कि जितने मैक्सिमम आप पे अप्लाई करते हैं आप उन पे जो है टिक लगाएं so that is screen show nahi ho rahi. Guys, rest of the guys, can you please confirm me if the screen is visible or not? Because I can watch the screen. Guys, can you please confirm me if the screen is visible or not? All right, so it is visible to a lot of students. Um, please relog in. Roll number 11, please relog in.
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास अभी तक हमने कितने सीखे हैं? पहले या तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिनमें जो है आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले। दूसरा, आप उसी कैटेगरी में जो है ऑप्शंस दें, यस करंटली, यस इन द पास्ट और नेवर। ठीक है। तीसरा क्या है, आप मल्टीपल उनको जो है आंसर्स दें, उनमें से वो चूज करें। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं तो लेट मी नो। अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। Please let me know if these three types of questions are clear or not. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आप ऑप्शंस नहीं देंगे। ठीक है, जिसमें आप कोई कैटेगरी नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए टू द पॉइंट एग्जैक्टली क्वेश्चन करेंगे। इन विच ईयर डिड यू स्टार्ट द डिग्री कोर्स? उसमें क्या है कि वो बंदा आपको दो तीन आंसर्स नहीं देगा। डेफिनेटली ही और शी वुड बी गिविंग यू द स्पेसिफिक आंसर जिस ईयर में उसने डिग्री कोर्स स्टार्ट किया होगा, राइट? उसके बाद है कैटेगरी। आप एक ही ऑप्शन के अंदर कैटेगरी बनाए। यस, एक ऑप्शन आपका यस है करंटली, दूसरा ऑप्शन आपका यस है इन द पास्ट, और दूसरा फिर आपका तीसरा है नेवर। एक ही कैटेगरी है। हैव यू एवर बीन और आर यू अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव? यस, यस, नेवर। अब यस में हमारे पास कैटेगरी है या तो यस या नो, और यस में हमारे पास करंटली और इन द पास्ट है। ठीक है, या यस समटाइम्स भी हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मल्टीपल नहीं है, मतलब कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से ऑप्शन नहीं है। एक ही आंसर के अंदर हमने वैरायटी लेकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं उसी आंसर की कैटेगरी है। फिर हमारे पास है मल्टीपल चॉइस। ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं जिनमें हमारे आंसर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जिससे इसके आप जिस इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप अपनी हायर एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या सोचकर आप वो पैसा लगाते हैं कि वो एक लग्जरी है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आपकी नेसेसिटी है, एक जुआ खेल रहे हैं कि हाँ लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, एक बर्डन है आपके पास, या आप समझते हैं कि आपका हक है ये, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो मल्टीपल चॉइस में आप डिफरेंट जो है ऑप्शंस देते हैं लोगों को चूज करने के लिए। कैटेगरी में भी आप ऑप्शन देते हैं बट वो एक ही कैटेगरी के होते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में आप ऑप्शंस नहीं देते हैं, वो आपको लोग खुद ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। I hope roll number 52 and 06 it is clear. If it is not, please still ask me if you have any question in your mind. All right, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। Then we have scale, right? And then we have ranking. अब स्केल में क्या है, क्या होता है? अभी स्केल में हम क्या करते हैं कि एक चीज बहुत ही बुरी और दूसरी चीज बहुत ही अच्छी, फिर हम लोगों को कहते हैं कि आप इस स्केल में मतलब चूज करें कि कितनी अच्छी या कितनी बुरी। एक चीज एक्सट्रीम नेगेटिव है, एक चीज एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, फिर हम लोगों को बोलते हैं कि आप चूज करें कि एक्सट्रीमली नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव है, या न्यूट्रल है, थोड़ी पॉजिटिव है, या एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पेरेंट्स एटीट्यूड टू हायर एजुकेशन एट द टाइम यू अप्लाइड? प्लीज टेक वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो। अब आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या था जब आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे? उनका एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव था, मिक्स था, नेगेटिव था, वेरी नेगेटिव था, या नॉट श्योर? अभी आपने एक ही कैटेगरी की स्केल बनाई है। एक एक एंड है आपकी वेरी पॉजिटिव और दूसरी एंड है आपकी वेरी नेगेटिव। अब आप कह रहे हैं लोगों को कि इस स्केल है स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी पॉजिटिव टू वेरी नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव भी आता है, मिक्स भी आता है, नेगेटिव भी आता है। अब आप उसमें से सिलेक्ट करें कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद हमारे पास है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है, हम लोगों को ऑप्शंस दे देते हैं
एंड वी आस्क पीपल टू रैंक के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको नंबर 1 दें, फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको नंबर 2 दें, फिर नंबर 3 अपना सिलेक्ट करें, फिर अपना नंबर 4 सिलेक्ट करें। चलें जी एग्जाम्पल को देखते हैं। व्हाट डू यू सी एज द मेन पर्पस और पर्पसेस ऑफ योर डिग्री स्टडी? अब क्या है, हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपका मेन पर्पस क्या है डिग्री लेने का। ठीक है, अब इसमें ये क्या करें, प्लीज रैंक ऑल दोज रिलेवेंट इन ऑर्डर फ्रॉम वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड्स। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट है, कैरियर एडवांसमेंट, सब्जेक्ट इंटरेस्ट, रिक्रिएशन, फुलफिल एम्बिशन। अब हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि आपका जो मेन पर्पस डिग्री लेने का क्या है। अब इनमें जो नंबर 1 है, हमने 5 ऑप्शंस दिए हैं। आपको जो लगता है कि नंबर 1 आपका ऑप्शन है उसको नंबर 1 दें, उसके बाद आपको जो लगता है कि आपका दूसरा ऑप्शन है उसको नंबर 2 दे। तो हम रैंकिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 के, कोई हमारे लिए ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट है और कितना लेस इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज हाउ वी मेक स्केल एंड रैंकिंग इन द क्वेश्चंस। डिपेंड करता है हम किस तरह की जो है रिसर्च कर रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फीजिबल फॉर अस, और हमारी जो रिसर्च है उस पर कौन से क्वेश्चंस लगते हैं। हम सारे क्वेश्चन एक साथ भी, हमारे क्वेश्चन है में ये सारे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और हमारे क्वेश्चन कोई सी भी एक टाइप पर भी बन सकता है। अगर आप चाहें तो सारे जो क्वेश्चन है स्केल पे बनाए। When I was working for my masters, I met my entire questionnaire on scale. I had positive to very negative. Please let me know if scale and ranking is clear. If not, please ask me the questions. वो जो सारे क्वेश्चन और उसके टाइप्स ऑफ बचपन से ही करते आ रहे होते हैं, राइट। अभी आपको जो है फिर रियलाइज होता है जब आप उन चीजों को बहुत क्लियर से पढ़ते हैं कि हाँ ये ही था, इसको स्केल बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको रैंकिंग बोलते हैं। बाकी ये सारी चीजें आपने सबने पहले से ही की हुई होती हैं। आपके एंट्री टेस्ट में या आपके जितने भी एग्जाम हैं उनमें यही क्वेश्चंस आते हैं, यही टाइप्स हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं। maybe you might have not realized it कि अच्छा इतने types हैं questions के और ये सारी questions की categories हैं, but now when you are learning it you are realizing that yes, these were all the types which we encountered before. I want everyone to please let me know if the scale and ranking is clear, because most probably ऐसा ही होता है कि जब हम अपने क्वेश्चनर बनाते हैं तो उनको हम स्केल पे बनाते हैं या रैंकिंग पे बनाते हैं। All right, so we are clear. Then we have a grid or table. उसमें हम क्या कहते हैं, ग्रिड और टेबल में हमारे पास बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस होते हैं और उनके लिए हम जो बनाते हैं आंसर्स के, वो एक ही बनाते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप टिक करके जाएं। मैम आवाज कट के आ रही थी, रैंकिंग दोबारा समझाएं, सिग्नल प्रॉब्लम है। तो रैंकिंग का बेटा मतलब है कि आप ऑप्शंस दे देते हैं लोगों को और आप उनको बोलते हैं कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको नंबर 1 पे रखें, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको नंबर 2 पे रखें। इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले और जितने लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप बाद में रखें। तो उसमें क्या होता है कि रैंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए डिग्री लेना क्यों ज़रूरी है, कि हो सकता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैरियर एडवांसमेंट, तो उसको मैं दूंगी नंबर 1। उसके लिए जो है मेरे पास है पर्सनल डेवलपमेंट, तो फिर मैं उसको दूंगी नंबर 2। उसके बाद मेरे पास है फुलफिल एम्बिशन, फिर मैं उसको दूंगी नंबर 3। फिर उसके बाद मेरे पास सब्जेक्ट इंटरेस्ट है नंबर 4 एंड रिक्रिएशन देन नंबर 5। इसी तरह से जैसे ही आप जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको आप नंबर 1 देंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पे आप जाएंगे नंबर 5 पे। 77, आई होप इट इज क्लियर, इफ इट इज नॉट प्लीज लेट मी नो देन। उसके बाद हमारे पास एक ग्रिड या टेबल, उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस की तरह होते हैं उनको हम एक स्केल में डाल देते हैं ताकि हमें वन बाय वन सब चीज़ों का पता चलता जाए।
This is how would you rank the benefits of your degree study for each of the following? Please rank each item. अब ये भी रैंकिंग है, ठीक है। आप इसमें क्या कह रहे हैं, वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, नेचर। अब आप क्या कह रहे हैं, ग्रेड और टेबल में ले रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, हाउ वुड यू रैंक द बेनिफिट्स ऑफ योर डिग्री स्टडी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपकी जो डिग्री है उसके बेनिफिट्स के लिए लोगों के या आपके एटीट्यूड का है, आपके लिए वो कितना उसका एटीट्यूड किस तरह से आप दिखेंगे, वेरी पॉजिटिव। योर फैमिली मे बी इट इज पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव ना हो तो आप पॉजिटिव वाले में टिक लगाएंगे। यूर एम्प्लॉयर, तो उसके लिए आपको नहीं पता तो आप न्यूट्रल लगाएंगे। द कंट्री आपको लगता है उसके लिए वेरी पॉजिटिव है तो आप वेरी पॉजिटिव लगाएंगे। योर कम्युनिटी आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। योर फ्रेंड्स, इफ यू थिंक नेगेटिव और इफ यू थिंक न्यूट्रल तो आप उस तरह से करेंगे। अब क्या है कि आप बार बार अलग अलग बनाते हैं, फैमिली के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक ग्रिड और टेबल में फॉर्म में लेकर आते हैं रैंकिंग को, ताकि वो इजी हो जाए फिर। उसके बाद है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने कल ही किए हैं ओपन क्वेश्चंस। जितने ये ऊपर सारे क्वेश्चंस थे वो क्लोज एंडेड थे, अब हमारे पास ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप कोई ऑप्शन नहीं देते हैं और आप जो है ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनमें पार्टिसिपेंट्स जितना चाहे इनपुट दे सकते हैं। प्लीज समराइज द बेनिफिट्स ऑफ योर डिग्री स्टडी इन द स्पेस बिलो। अब इसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप जो भी लिखेंगे अपनी तरफ से लिखेंगे, खुद लिखेंगे। आप किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। यू कैन राइट एज मच एज यू वांट। अब प्लीज मुझे बताएं इफ द ग्रिड और टेबल एंड ओपन क्वेश्चंस आर क्लियर और नॉट। अब ऊपर जितने भी सारे सिक्स आपके पास क्वेश्चंस की टाइप्स हैं वो आपके क्लोज एंडेड थे, और जो आपका सेवेंथ है दैट इज ओपन एंडेड। Okay, before we go on to the research methodology, I would like to ask everyone if all the question types are clear or not. Okay, guys, I need to teach methodology, but for that, I want you to be fresh. It's 11:23. Take a break for 7 minutes, right? Come back at 11:30. Come back at 11:30, please. Take a break, please. Fresh your mind. Go get and fresh air so that we can start methodology. I want you to be fresh when I start methodology.
अच्छा जी, आई होप यू गाइस आर फ्रेश नाउ। तो साथ को बड़ी जल्दी है, उसने अभी से मिड की तैयारी करनी है, उसने पोजीशन लेनी है शायद। So, what do you guys suggest? Should we cover up methodology or we should discuss midterm? What do you want? Should we go ahead or mid? मैम कुछ दिन बचे हैं, किसमें? जिंदा रहने में। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, कम्युनिकेशन टाइप्स एंड मिड 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 मिड। अच्छा जी, मिड के लिए टॉपिक्स, एक मिनट। Guys, if my voice, please confirm if my voice is clear because it was just hanging on me to connectivity. अच्छा जी, मिड। एक मिनट, slide not showing.